Good morning, 11th class. So, we are on chapter number 10 of history, displacing indigenous people. We had already started the chapter. We had a brief introduction कि बेसिकली जब इस टाइम पीरियड पे अराउंड 17 18 बेसिकली 18 19 और 20th सेंचुरी में जो यूरोपियन कंट्रीज है दे वर वांटिंग टू फाइंड मोर एरियाज फॉर देयर यू कैन से प्रॉफिट एंड ऑल। तो उसमें हमने यही देखा कि कैसे उन्होंने नई एरियाज सो कॉल्ड इट वाज कॉल्ड द यूरोपियन डिस्कवर्ड, और उसके बाद कैसे उन्होंने वहां पे धीरे धीरे कंट्रोल किया और वहां के जो ओरिजिनल लोग थे, जो इंडिजिनस लोग थे, जो नेटिव पीपल थे, उनको वहां से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ओके, सो एक हमने इंट्रोडक्शन किया था एंड हमने यूरोपियन इंपीरियलिज्म से रिलेटेड पढ़ा था कि इनिशियली कैसे स्पेनिश और जो पोर्चुगल है उन्होंने दे कंट्रोल लार्ज पार्ट्स ऑफ अमेरिकाज एंड मैनी अदर एरियाज, बट लेटर ऑन उसके बाद जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे इंग्लैंड एंड फ्यू अदर, फ्रांस, हॉलैंड, ये जो है ये दूसरे एरियाज पे कंट्रोल करने लग गए थे। एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इनिशियली कम टू इंडिया एज अ ट्रेडर एंड लेटर how did it get hold of the political power as well. And then we had certain idea about why these people were called in certain terms, and जो countries है उनको कैसे नाम मिले हैं basically depending upon what kind of you can say connection they had with the Europeans, मतलब किसने discover किया था या जिन्होंने इनके travels के बारे में लिखा था, and accordingly these names were given. Okay, so we have a basic idea of what we'll be studying in this chapter. So now we move on to few specific areas and what happened during certain period in these areas, and then how finally these were somewhere controlled by the European powers and the European countries. Okay, so when we start with America, we need to understand here that the continent of North America is actually a area which is somewhere we know what exactly is its location. If you have certain doubt, just have a look at this map and try to understand. जो continent of North America है, it extends basically from Arctic Circle to the Tropic of Cancer and from Pacific to the Atlantic Ocean. You can clearly see if you know basically जो हमारी important latitudes होती हैं, like the at 0 degree we know it is equator, and then above it one the next important one in the northern hemisphere is our Tropic of Cancer. Tropic of Cancer is the one which passes almost through center of India. ठीक है, तो बट इसका एक्सटेंशन बिकॉज वी नो नॉर्थ अमेरिका इज टूवर्ड्स द नदर्न साइड ऑफ इंडिया, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल जो है उसके बीच में है नॉर्थ अमेरिका। ओके, और ओशंस जो है हमें पता है, दिस साइड वी हैव आवर पैसिफिक ओशन, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन इजीली नोटिस इट। This is Pacific Ocean on one side and Atlantic Ocean on the other side. So clearly things you clearly I think you already may be having certain idea about its location, still we can just go through it once again. Okay, and अगर west में देखें तो we have these Rocky Mountains, and basically we also have here desert of Arizona, Nevada, and then we have Sierra Nevada mountains. Then again to the east, the Great Plains. Then we have the Great Lakes, valleys of Mississippi. All of these, I think you can easily notice these things. And we have, as I said, you must have done in your classes, maybe junior classes as well. Okay. So when I'm talking about these things, just try to recall them. Okay. अब उसके बाद हमारे जो ओहियो एफलेशियन माउंटेन्स जो हैं, इनकी भी यू कैन सी दिस इज द लोकेशन ऑफ द एफलेशियन माउंटेन्स। अब ये जो हमारे ये तो पूरी लोकेशन है किस चीज की कि कहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका जो है वो लोकेटेड है। हाउ इज इट लोकेटेड इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और इफ वी टॉक इन टर्म्स की इट इज सराउंडेड बाय विच वाटर बॉडीज, और भाई माउंटेन्स भी है यहाँ पे, you can see plains bhi hai, and this is the area which is somewhere again having variety of landforms. Okay, rivers are also present. And then if you know the you can say the main areas or the main countries of North America, then also you may be knowing this portion is our US,
And here also ये जो Alaska है, this is also part of US. Then we have Canada this side. Then towards the south we have Mexico. Okay, so to the south is Mexico, and we know towards the north is Canada, and in between we have US. Now basically 40, अगर हम if we talk about Canada, तो 40% of Canada is basically covered with forest. Then this area is also rich if we talk in terms of resources. So oil, gas and mineral resources, all of them are found in these areas. That is why basically हम देखेंगे कि in the present time we know there are very big industries that are being set up in US as well as Canada. So basically ये वो areas हैं which have developed a lot if we talk in today's terms. Okay, now today along with being industrialized and somewhat developed countries, today wheat, corn and fruit are also grown extensively here, and fishing is the major industry in Canada. So this is when we understand about the, you can say, few of the important characteristics of North America. So we know its location as well as we know why it is important for certain industries, or maybe does agriculture, the agriculture is done in certain specific things. Okay, so this is what we have certain idea now. So whenever we talk about North America, you should have a, you can say, visual imagination ki on the world map where is it exactly located. Okay, so this is basic the description that we have already understood through the map. Okay, so tropic of Cancer और Arctic Circle के बीच में है, Pacific and Atlantic Oceans के again बीच में है. Then we have Rocky Mountains, we have deserts, we have Great Plains here, Great Lakes, Appalachian Mountains है, South में Mexico है. Then we have Canada, US. Industry wise भी developed है, agriculture wise भी developed है. Okay, so now we also need to understand few more things. This is what we were talking about the present day North America. Obviously location तो same ही है, but जो development हुआ है, that is what we are talking about for the present times. Okay, so mining industry and जो extensive agriculture है, that has been developed in the last 200 years. Okay, by the immigrants from Europe, Africa and China. So what do I mean by this? I mean कि ये जो हम development की बात करते हैं, whether it is in terms of industries or whether it is in terms of mining or whether it is in terms of extensive agriculture, whatever it is, it has basically developed through the last 200 years. Okay, so because, and this is somehow, this has somehow developed because of coming of the Europeans, the Africans and the people from China. तो हम बोल सकते हैं Asians जो हैं. तो ये जब आए North America, these were the people of basically coming of these people, and later on this led to the development of industries and the other things. So, but जब भी हम बात करेंगे, it is not that their history will start only from that period when Europeans or the Chinese or the other people entered this area. It has a long history. Okay, it had a long history. Now, again, there were people who were living in North America for thousands of years, even before coming of the Europeans. Obviously, this was a place which was inhabited by many other people. Okay, but हम basically देखेंगे कि we generally talk only about that European entered this area or this continent at this particular time. उसके बाद ये changes हुए and this and that. तो उससे पहले जो लोग रहते थे around more than 200 years back, जो लोग रहते थे उनकी क्या लाइफस्टाइल थी and how these people used to live, and along with that उसके बाद इस मतलब उनके आने के बाद, यूरोपियंस के आने के बाद क्या चेंजेस हुए उनके लाइफ में, दैट इज व्हाट वी शुड नाउ मूव ऑन विद. So this one we have already done about the, you can say, जो present America है. Now we move on to the native people, the original people. Native basically means that the person who is born in that place. Okay, and then obviously that person lives there and maybe from generation to generation.
जब हम नेटिव टर्म की बात करते हैं, टिल द अर्ली 20th सेंचुरी द टर्म वाज यूज्ड बाय यूरोपियंस टू डिस्क्राइब द इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री दे हैड कॉलोनाइज्ड। ओके, यानी अर्ली 20th सेंचुरी तक ये जो टर्म था ये वो कौन यूज करते थे? यूरोपियंस यूज करते थे टू डिस्क्राइब द इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स का मतलब क्या? जो ओरिजिनली उन कंट्रीज में रहते थे जिनको यूरोपियंस ने कॉलोनाइज किया था। ओके, सो टू अंडरस्टैंड बेसिकली हम बोल सकते हैं जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे वहां के। तो अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका। तो जो ओरिजिनल या फिर हम बोलेंगे अर्लीस्ट जो इनहैबिटेंट्स थे जिनके बारे में अपने को पता है, द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका केम फ्रॉम एशिया। ओके, ओवर 30,000 years ago, ठीक है, ऑन अ लैंड ब्रिज अक्रॉस द बेरिंग स्ट्रेट। And during the last ice age 10,000 years ago they moved further south। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नाउ बेसिकली ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका में जो इनहैबिटेंट्स है वो आए थे एशिया से, फ्रॉम अ लैंड ब्रिज अक्रॉस बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट क्या है? इफ आई शो यू दिस मैप बेसिकली, कैन यू ऑल नोटिस दिस बेरिंग सी? I'll just mark it again. ये जो है अपना this, okay, this is Bering Sea, okay, और again see, this is Russia and we all know Russia is basically in Asia, है ना? तो now when I say that this is the Bering Strait, जिसके ऊपर एक लैंड ब्रिज बना हुआ था, और इस strait, what is strait actually? STRAIT, what is strait? Strait is basically a narrow passage of water connecting two sea or two areas of water bodies या two oceans. So basically यहाँ पे पैसिफिक ओशन और जो आर्कटिक ओशन है उसको कनेक्ट करता है ये बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है इसके ऊपर एक लैंड ब्रिज वाज मेड अक्रॉस, जिसके थ्रू क्या हुआ था? दीज पीपल ट्रैवल टू दीज एरियाज। ओके, दिस इज what we know till now. Now please, before I move on, just understand whenever we use a map to draw something or maybe to understand few things, we have a flat surface. Okay, so obviously but world we know is not flat, तो जो उसका शेप है, इफ वी वांट टू कनेक्ट इट, मतलब जो जियोइड शेप है, और अगर सिंपल टर्म्स में हम जो अपना मैप है उसको सर्कल बना के उसको समवेयर कनेक्ट करें ईस्ट एंड द वेस्टर्न साइड, तो वी विल सी कि रशिया और जो नॉर्थ अमेरिका है ना वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ओके, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ रशिया विच इज समवेयर you can say obviously not connected but somewhere near to North America, और इसके बीच में ही हमारा आता है बेरिंग स्ट्रेट। और ये जो बेरिंग स्ट्रेट है इसी के थ्रू क्या हुआ था? इसी के थ्रू जो एशियंस है वो नॉर्थ अमेरिका में आए थे ओवर 30,000 years ago। एंड बेसिकली उसके बाद जब अराउंड लास्ट आइस एज था हमारा 10,000 years, तो उसके बाद से वो थोड़ा नॉर्थ की तरफ मूव करने लग गए थे। ओके, सो ये तो हुआ जब हम बात करते हैं कि अबाउट द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स वी नो, अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स हु केम टू नॉर्थ अमेरिका। अब वी हैव फ्यू एविडेंसेस एज वेल। जो ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट है विच इज फाउंड इन अमेरिका इज अ पॉइंट ऑफ एन एरो। तो एक एरो पॉइंट मिला है, ठीक है, and it is around 11,000 years old. So somewhere we can find out by these evidences कि yes people used to live और इस type का उनकी lifestyle थी। Okay, now the population started to increase about 5,000 years ago when the climate became more stable. whenever we have studied history, स्पेशली जब हमें एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है उनकी पॉपुलेशन एक्चुअली में पहले तो स्टार्टिंग में सेटल होना, इवॉल्व होना कब स्टार्ट हुई थी? जब क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा सूटेबल हो गया था कंपैरेटिवली एंड स्टेबल हो गया था। So that is what we notice here as well, that the population started to increase about 5,000 years ago when the climate became more stable. Okay,
अब यहाँ पे लोग कैसे रहते थे? These people used to live in bands, मतलब ग्रुप्स के फॉर्म में रहते थे in villages along the river valleys. जनरली एंशियंट टाइम्स में हमें पता है ज्यादातर जो लोग होते हैं वो रिवर के पास ही रहते हैं. So these people also lived in bands in villages along the river valleys. Okay. So then what was their lifestyle like? Okay, bands मतलब तो हो गया in groups. Now they ate fish, they ate meat, and they cultivated few vegetables and maize as well. Okay. They often went on long journeys in search of meat, यानी कि to search for you can say meat and मतलब ये जो वेजिटेबल्स और मेज के अलावा और जो चीजें इनको चाहिए होती थी, स्पेसिफिकली अगर मीट की बात करें तो इसके लिए ये लॉन्ग जर्नीज पे जाते थे. एंड बेसिकली किसकी सर्च में जाते थे? बाइसन. What is bison? Bison is actually not totally similar to buffalo, but it is, you when you notice it you can somewhere find the resemblance. तो उस टाइप का होता है. And these bisons are generally found in the Americas and this kind of area. तो ये चीफली बेसिकली बाइसन को सर्च करने के लिए जाते थे, जो बेसिकली वाइल्ड बफेलो जैसी होती है, दैट रोम्ड इन द ग्रासलैंड्स, क्योंकि ग्रासलैंड्स में रोम करती थी, अपना ग्रेज करती रहती थी. एंड देन दीज पीपल वेंट देयर बेसिकली फॉर सर्चिंग फॉर देम एज अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ मीट. ओके. उसके बाद क्या हुआ, ये जो इनका सिस्टम था बेसिकली ये थोड़ा सा इजी हो गया. कैसे? बेसिकली 17th सेंचुरी से जब नेटिव जो थे, ये जो यहाँ के लोग थे, ये अब हॉर्सेस राइड करने लग गए थे. हॉर्सेस इनके पास कहाँ से आए? These were basically the horses were basically bought from the Spanish settlers. यानी जो स्पेनिश सेटलर्स थे उनसे ये लोग क्या करते थे? हॉर्सेस को खरीद लेते थे. दे बॉट हॉर्सेस और उसके बाद उसके ऊपर राइड करके वो अपने सर्च पे जाते थे. दैट इज व्हाई देयर यू कैन से जो ट्रैवल है, जर्नी है, इट बिकेम कंपैरेटिवली इजी. अब इसमें भी हमें ये चीज ध्यान रखनी है that these people they only killed as many animals as they needed for food. ऐसा नहीं है that बस ऐसे ही they will kill the animals. जितना उनको required था उतना ही उन्होंने क्या किया था, उतना ही वो लोग क्या करते थे, consume करते थे. ओके. तो अब let us know more about these people, the native people. Now these people actually never attempted for extensive agriculture. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर जो वो बहुत बड़े फॉर्म में इनको प्रैक्टिस करनी है. Basically that is why since they did not had produce that much of surplus, कोई एक्स्ट्रा नहीं प्रोड्यूस करते थे, सिंपली बिकॉज भाई इन्होंने एग्रीकल्चर इतना एक्सटेंसिव वे में, इतने एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं किया था. इसलिए अब क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा सरप्लस नहीं था, इसीलिए इन्होंने किंगडम्स डेवलप नहीं किए और यहाँ पे एम्पायर्स भी नहीं थे, जैसे कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका में थे. ओके. नाउ इन आवर हिस्ट्री व्हेनेवर वी हैव स्टडीड अबाउट दीज थिंग्स, हमने नोटिस किया है जनरली जब चीजों का सरप्लस हो जाता है, लोगों के पास एक्स्ट्रा चीजें हो जाती है, एक तो वो अपने लेजर टाइम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एम्पायर्स डेवलप होते हैं, वो लोग लैंड के लिए लड़ते हैं और ऐसी करके प्रॉब्लम्स होती है. लैंड ओनिंग, हमारे पास ज्यादा लैंड हो हमारे पास, ऐसे करके एम्पायर्स और किंगडम्स डेवलप हुए थे. बट यहाँ पे तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर ही नहीं थी, उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, एक्स्ट्रा कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें प्रोड्यूस नहीं करते थे, इसीलिए दे डिड नॉट डेवलप एनी काइंड ऑफ किंगडम और एम्पायर, जैसा कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका में हो रहा था इस टाइम पे. और थोड़े बहुत इंस्टेंसेस हैं हमारे पास अबाउट की क्वारल्स वगैरह हुए थे, थोड़ी बहुत लड़ाई होती थी ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में ओवर टेरिटरी, बट मेनली उनकी जो क्वारल्स या उनकी जो मतलब समवेयर थोड़ा बहुत जो लड़ाई होती थी, it was not basically for control over land or something of this issue. ठीक है. So by and large control of land was not an issue for them. अभी तक वो वाली चीज नहीं आई थी कि मेरे पास ज्यादा लैंड होनी चाहिए या मेरे पास ज्यादा लैंड होनी चाहिए. ठीक है. ट्राइब्स जो है कि उन्होंने अपने अपनी टेरिटरी डिवाइड कर रखी थी, तो अपने पावर से रिलेटेड या और किसी इशू से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वारल्स हो जाते थे, बट मेजर इशू कभी भी कंट्रोल ओवर लैंड नहीं था.
They were somewhere very contented people, very satisfied kind of people. They were totally contented with the food and shelter that they got from the land without any need to basically own it. तो उनको ऐसे नहीं लगता था कि भाई ये लैंड मेरा होना चाहिए या फिर इसके ऊपर मैं कंट्रोल कर लूं. They were very contented, जितना खाना मिल रहा है, जितना हमें शेल्टर है, that is well and good enough. एंड इसमें अभी तक उनको ऐसा कभी लगा ही नहीं कि भाई हमारे पास भी ये जो लैंड है ये मेरा होना चाहिए, आई शुड ओन इट. ओके, या पर्टिकुलर ग्रुप में बेसिकली लैंड ओनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा इशू नहीं था. ठीक है. पर एक जो अगर हम इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फीचर देखें इनके ट्रेडिशन का, वो ये था कि जब भी वो फॉर्मल अलायंस बनाते थे. फॉर्मल अलायंस क्या होता है बेसिकली, लाइक एक तरीके की कोई ट्रीटी साइन करना, या भाई दो ग्रुप्स का या दो ट्राइबल का साथ में मिलना, फ्रेंडशिप जैसे करना. तो फॉर्मल जो मतलब नॉट इनफॉर्मल ऐसे ही फ्रेंडशिप थी, फॉर्मली अगर जब भी उनका अलायंस होता था, फ्रेंडशिप होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे गुड्स एंड गिफ्ट्स. तो जो गुड्स होते थे दे वर नॉट ऑब्टेन्ड बाय बाइंग but as gifts. मतलब there are two tribes, one of the tribe is very good at one producing one particular good. तो वो उस goods को खरीदते नहीं थे, वो लोग friendship जैसे कर लेते थे, alliance जैसे कर लेते थे. and because अब वो लोग allied group हो गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं, friends हो गए, friendly relation हो गए, इसलिए they used to give things to each other. तो ये जरूर है कि इनका इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन था कि फॉर्मल अलायंस के टाइम पे, फ्रेंडशिप के टाइम पे वो एक्सचेंज करते थे गिफ्ट्स, और ये वाली चीजें चलती थी. और बेसिकली गुड्स जो उनको खरीदा नहीं जाता था, उनको बेसिकली एज गिफ्ट दिया जाता था. ठीक है. तो दिस वन बेल्ट इज शोन ऑन योर स्क्रीन, आई थिंक यू कैन क्लियरली नोटिस इट. इसको बोलते थे वैम्पम बेल्ट. ये होता क्या है बेसिकली, वैम्पम जो है वो एक ट्रेडिशनल शेल की बीड जैसे होती थी. तो उसको क्या कर देते थे, स्टिच कर देते थे, तो एक वो बेल्ट जैसा बन जाता था. और ये जो है ये एक्सचेंज किया जाता था. नेटिव ट्राइब जो है एक दूसरे से ये एक्सचेंज करते थे जब भी वो कोई ट्रीटी साइन करते थे या कोई अलायंस करते थे आपस में. तो एज अ गिफ्ट ऑफ फ्रेंडशिप और इस तरीके से ये ऐसी चीजें क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे. सो इस टाइप की देयर वर फ्यू कस्टम्स दैट वर बीइंग प्रैक्टिस्ड एट दैट टाइम. ओके. अब अगर हम इनकी लैंग्वेजेस से रिलेटेड बात करें, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी नॉर्थ अमेरिका में, बट ऑब्वियसली हमें पता है ये लिखी नहीं जाती थी तब तक. और they believe that time moved in cycles, and each tribe had accounts about their origins and their earlier history which were passed on from one generation to the next. basically वो यही बोलते थे टाइम जो है साइकिल्स में मूव करता है, अच्छा टाइम, खराब टाइम, एंड मतलब बेसिकली इट इज कंटिन्यूइंग, इट इज अ काइंड ऑफ साइकिल. ठीक है. और ये भी हर ट्राइब जो है वो अपने ओरिजिन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी अकाउंट्स थी, या उनकी जो अर्लियर हिस्ट्री थी, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे पास होती थी, बेसिकली ओरली पास होती थी. क्यों कि वी नो कि ये जो है एज सच वो रिटन मैटर नहीं था. सो ईच ट्राइब हैड अकाउंट्स अबाउट देयर ओरिजिन्स एंड देयर अर्लियर हिस्ट्री व्हिच वाज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. ओके. कुछ information that means these people had which were being passing on from one generation to the other. and इसके अलावा there were skilled craftsmen, और मतलब these people were skilled in few things, जैसे कि टेक्सटाइल्स जो हैं बहुत ब्यूटीफुली वीव करते थे वो. एंड one more important thing, they could read the land, they could understand the climate and the different landscapes in the way literate people could read the written text. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जो एक लिटरेट पर्सन होता है वो एक बुक में क्या लिखा हुआ उसको इंटरप्रेट कर सकता है, उसको समझ सकता है, वैसे ये लोग है ना लैंड को समझ पाते थे. कैसे समझ पाते थे कि भाई क्लाइमेट कैसा है, लैंडस्केप कैसा है, और वो उसको फील करके, उसको देख के उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते थे, और उसके अकॉर्डिंग मतलब दे हैड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बेसिकली थ्रू देयर एक्सपीरियंस, एंड दे कुड रियली अंडरस्टैंड द क्लाइमेट एंड द लैंडस्केप. जैसे कि एक जो लिटरेट पर्सन है वो बुक में जो लिखा है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकता है. ओके. सो दिस इज यू कैन से द काइंड ऑफ पीपल
who were the native of North America used to live their life, and this was basically how they believed in certain things, and somewhere what this was their lifestyle. Okay, now here is a blue box that is given in your book on page number 215, और ये जो है इसमें बेसिकली वही बताया हुआ है कि जो अमेरिका है उसमें यूरोपियंस के आने से पहले कैसी लाइफस्टाइल होती थी. तो एज यू कैन सी, एट द सनसेट ऑन द डे बिफोर अमेरिका, मतलब दैट इज बिफोर द यूरोपियंस रीच देयर एंड गेव दिस नेम टू द कॉन्टिनेंट. ओके, तो यानी उनके आने से पहले, अमेरिका क्यों बोला है, क्योंकि अमेरिका नाम यूरोपियंस ने दिया था. तो यानी उनके आने से पहले, यूरोपियंस के आने से पहले बहुत डाइवर्सिटी थी इस लैंड में. लोग जो है 100 ऑफ लैंग्वेजेस बोलते थे, और मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज करते थे जनरली प्राइमरी से रिलेटेड, जैसे हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग, गार्डनिंग, फार्मिंग, मतलब बहुत सारे थे और अलग अलग कॉम्बिनेशन में करते थे. मतलब हंटिंग भी कर रहे हैं, गैदरिंग भी कर रहे हैं, फिशिंग भी कर रहे हैं, सपोज फार्मिंग भी कर रहे हैं. अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये लोग अलग अलग काम करते थे. जो क्वालिटी ऑफ सॉइल थी, दैट एन एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओपन एंड टेन देम डिटरमाइन सम ऑफ देयर चॉइसेस ऑफ हाउ टू लिव. मतलब किस एरिया में रह रहे हैं वो, उस सॉइल की क्वालिटी कैसी है, और वो उसमें मतलब काम करने के लिए कितना एफर्ट रिक्वायर्ड है, वो अपनी चॉइस से चीजें डिसाइड करते थे. एंड अकॉर्डिंगली वहां पे जो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते थे वो अकॉर्डिंगली करते थे. कल्चर और सोशल बाइसेस थी डिटरमाइंड अदर्स. बेसिकली कल्चरली और सोशली भी उनका सिस्टम जो है एक अलग ही कंसेप्ट से चल रहा था. पीपल वर एक्चुअली हैविंग सोशल एंड कल्चरल बेसिस ऑल्सो, और एक सिस्टम डेवलप था कि कल्चरल और सोशल सिस्टम डेवलप था जिसके बेसिस पे लोग जो है दे यूज्ड टू लिव देयर लाइफ. surplus of fish, grain, garden plants and meats जो है help them create powerful tired society here but not there. दैट मीन्स सम कल्चर्स हैव एंड्योर्ड फॉर मिलेनिया. अब ये क्या बोल रहे हैं कि सरप्लस ऑफ फिश, ग्रेन, गार्डन प्लांट्स और मीट्स जो हैं दैट हेल्प क्रिएट पावरफुल एंड टायर्ड, मतलब डिवाइडेड सोसाइटी जो है वो यहाँ पे जैसे डेवलप हो रही थी वैसे बट नॉट देयर. मतलब समवेयर नहीं हो रही थी डेवलप, यानी इन एरियाज में जनरली इतना ऐसे डिवाइड नहीं हुई थी. सोशल अगर हम बोले सोसाइटी जो है अकॉर्डिंग जैसे हायरार्की में डिवाइड हो जाती है वैसे. ओके, तो समवेयर इट वाज देयर एंड समवेयर इट वाज नॉट देयर. बेसिकली बहुत वेरिएशंस थी यहाँ पे. और समवेयर हम बोल सकते हैं कि जितना भाई बाद में आने के बाद जैसे जिस हिसाब से सोसाइटी बहुत सारी चीजों में डिवाइडेड थी और बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन था, कंपैरेटिवली उतना नहीं था. एंड बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा कि सरप्लस जो है इनके हर जगह पे नहीं था, बट वेर एवर इट वॉज देयर वॉज सर्टन काइंड ऑफ टायर्ड सोसाइटी थी, सोशल बाइसेस थे somewhere, but somewhere also it was not there. So this is basically something that has been mentioned by one of the, you can say, writer William Maschlish. Day before America इन्होंने लिखा था, उसमें इन्होंने ये चीज मेंशन की है. So इसमें हम basically in today's class we have covered about the native people of North America, what was their lifestyle and things related to it. Okay, so now in our next class we'll basically study about the encounters with the Europeans. मतलब Europeans के आने से पहले ये वाली lifestyle थी इनकी, but अब हम देखेंगे Europeans के आने के बाद क्या होता है. यूरोपियन से आने से पहले की जो लाइफस्टाइल किस हिसाब से, मतलब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं था, ट्राइब्स आपस में गिफ्ट वगैरह करते थे, दिस वाज व्हाट वाज देयर लाइफस्टाइल. बट now what will happen after the Europeans enter these areas, this is what we'll be doing in our next class. So this is it for today's class. If you have any doubt relating to the topic that we have covered, come back with your problems and we'll solve all your problems. Okay, so now meet you all in the next class.